Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to look at Scorpion Ascendant and the predictions for the month of February 23. So we will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mars is going to be in the 7th house in Taurus sign till 12th of March. This is a good position for the married life because Venus is the planet of attraction and Venus and Mars are natural partners. So you are going to enjoy with your spouse or partner in the month of February. Mars is also the owner of the sixth house that depicts service. So people in jobs will also excel in this month. The best time to excel in your job is at the end of the month from 25th to 28th of February. It is also a fruitful month for businesses that are done in partnership. Scorpion ascendant people gets a fun-loving spouse due to the Taurus sign ruled by Venus, and they are in direct contrast with this nature. While attraction does exist between the two signs, but staying with a Scorpion ascendant people is not an easy job for their spouses. Scorpion ascendant natives are energetic, unyielding, and they get into a lot of troubles due to getting into fights with people very frequently. Mars is not only the ascendant owner, it is also the owner of the sixth house, which depicts death, disease, and conflict. So fighting comes naturally to Scorpion ascendant people. They never forgive or forget. Just like a scorpion that lurks from the shadow to attack and take their vengeance, such is the nature of the Scorpion ascendant people. They are blessed with an acute determination and they never give up, which takes them places provided they have supporting planets in the second, sixth, and the 10th house. Jupiter is the fifth house lord and will continue to pass through the fifth house. So, people who are interested in speculation will find this month favorable. Best time for speculation is after Venus moves into the fifth house with Jupiter. So, from 15th of February to 25th of Feb, the time frame is very conducive for taking speculative bets. Lords of Gains Mercury is also in trine position from the house, the 11th house, and is providing an indirect support for gains during this month. Students will also do well from the second week of February and they will find a lot of traction in their pursuits from 8th of February to 23rd Feb. Jupiter would have allowed you to settle down in the last 1 year, and this will continue till March end because it sees your house of fortune as well as your ascendant, and your life would have reached a certain level of stability in the last 1 year. You are currently passing through a very good time from November when Mars entered this sign of Taurus, and this time will continue till 12th of March. Sun is going to be in the third house till 12th of February. So people who are in tours and travel related domain will see a travel in the beginning of month. So from 1st to 12th of February, traveling will be on cards. This could be work related or it could also be related to religion. Saturn and Venus conjunction is pretty good from earning gains, and Saturn is going to aspect your 10th house from this 4th house after 17th of January. And after April, when Jupiter also moves into the Aries sign in the 6th house, it will also start aspecting the 10th house. So you can expect some kind of a major changes at your workplace. This Saturn's aspect on the 10th house increases responsibilities by many fold, and there are a lot of people who feel like leaving their jobs and doing something else. But this double aspect is certainly going to increase the money that you earn from your workplace. So the best way to deal with Saturn here is to feed poor people your home cooked food. And if you continue doing this from 17th January till the end of 25, when Saturn is posited here, you will certainly feel the benefit at your workplace. Rahu and Ketu continue to be in a very good position. Rahu is considered very strong in the sixth house as it dismantles your enemies, and Ketu in the 12th house makes one touch higher dimensions of spirituality. Now, there are also certain dates when you need to be cautious. I always say that these are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house, and you should avoid making any key decisions during this transit. So, the days in the month of February are 2nd and 3rd of February, 12th and 13th of February, and 25th and 26th of February. Avoid making any key decisions in these 6 dates. At the moment, you are passing through a very good time, and you will continue to see very good progress in the domain of your workplace till 12th of March. So that's the summary for you for this month.
I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसे गुजरेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश मंगल सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। 12 मार्च तक ये यहाँ पर वृषभ राशि में ही बैठे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है शादीशुदा जिंदगी के लिए, क्योंकि शुक्र का यहाँ पर साइन पड़ता है और शुक्र और मंगल का आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन रहता है। इनको हम नेचुरल पार्टनर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फरवरी का समय है कि आप अपने पार्टनर या अपने स्पाउस के साथ अपना टाइम एंजॉय कीजिए। मंगल छठवें भाव का भी स्वामी बनता है। छठवें भाव से आपका सर्विस देखी जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये महीना अच्छा निकलेगा। और जो अच्छे दिन होंगे जिसमें आप जॉब्स में अच्छा कर सकते हो वो महीने के आखिरी में है, 25 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। ये अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेसेस में हैं तो उसके लिए भी फरवरी के महीने में अच्छा समय देखने को मिलेगा। देखिए, जो स्कॉर्पियो लग्न के लोग होते हैं इनको पार्टनर हमेशा मौज मस्ती वाला मिलता है, क्योंकि शुक्र की राशि है। दूसरी राशि जो होती है तुला, वो थोड़ी सी बैलेंस्ड होती है। लेकिन जो वृषभ लग्न के लोग होते हैं वो विषय सेवन में अति कर देते हैं। शुक्र की राशि होने की वजह से वो रुकना नहीं जानते। तो पार्टनर इनको बड़ा फन वाला मिलता है जिसको मौज मस्ती करनी है। और वृश्चिक लग्न के लोग इसके जस्ट उल्टे होते हैं। तो इनके लिए जो इनके पार्टनर्स होते हैं उनके लिए इनके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके का व्यक्ति का मिजाज होता है उससे थोड़ा तालमेल बिठाने में मुश्किल पड़ती है। जितने भी वृश्चिक लग्न के लोग हैं ये बहुत दृढ़ स्वभाव के होते हैं। और चूंकि मंगल का साइन है तो इनमें एनर्जी भी बहुत होती है। और ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते। और इनको दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ना बिल्कुल नेचुरली आता है, क्योंकि छठवें भाव में भी मंगल की राशि पड़ती है। तो इन लोगों के लिए किसी को माफ कर देना या अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है तो उसको भूल जाना ये संभव नहीं होता है। और जैसे आप अगर बिच्छू को देखेंगे तो वो हमेशा ड्रम के नीचे या कहीं अंडरग्राउंड घात लगा के बैठा रहता है अंधेरे में। वो जैसे ही उसको कोई अपना शिकार दिखता है, या आप कई बार देखेंगे कि इंसानों को भी पहले जब हम लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे तो बिच्छू काट जाता था, क्योंकि वो छुप के बैठा रहता है और एकदम से हमला करता है छाया में से निकल के। तो वृश्चिक लगने के लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। अगर आपने उनके साथ बुरा किया तो आपको सूद समेत बुरा वापस मिलेगा उनके थ्रू। इसीलिए कहीं पर भी आपको वृश्चिक लग्न के लोगों से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इनमें बहुत दृढ़ निश्चय होता है और ये कभी हार नहीं मानते। और इसी वजह से वृश्चिक लग्न के लोग काफी ऊपर तक उठते हैं। अगर उनके द्वितीय, छठवें और 10वें भाव में उन्हें सपोर्टिव प्लैनेट्स मिल जाए तो इन लोगों के जीवन में ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं होती। लिमिटलेस ग्रोथ करते हैं ऐसे लोग। अभी गुरु पंचम भाव में भ्रमण करते रहेंगे और गुरु का पंचम भाव से गुजरना इस महीने में जितने भी लोग शेयर बाजार सट्टेबाजी से इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। खास करके जब शुक्र पंचम भाव में मूव कर जाएगा उसके बाद 15 फरवरी से 25 फरवरी तक का समय आपको कोई कैलकुलेटेड बेट्स लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो 11वां भाव का स्वामी है बुध, वो भी तृतीय भाव में बैठा है। तो भाव के साथ 11वें भाव के साथ नव पंचम योग कर रहा है और पंचम भाव के साथ भी त्रिरेखा दश योग बना रहा है। तो ये वहां से भी इनडायरेक्ट सपोर्ट आपको मिल रहा है स्पेक्यूलेशन के लिए इस महीने में। स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 8 फरवरी से 23 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई की दृष्टि से हो सकता है कि आपको कोई पुरस्कार वगैरह भी मिल जाए अपने स्कूल कॉलेज में। गुरु जब से यहाँ पे आया है तो उसने आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी प्रदान की है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ती है और 7वीं दृष्टि 11वें और 9वीं दृष्टि पहले भाव पे पड़ती है। तो 9, 11, 1 तीनों भावों को पर गुरु पिछले 1 साल से दृष्टि डाले हुए है। तो ये गुरु हमेशा आपको जीवन में स्थायित्व लाके देता है जब ये प्रथम भाव को देखता है। और आप में से कई लोगों ने पिछले 1 साल में इसका अनुभव किया होगा। खास करके अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो आपको इसका असर डेफिनेटली देखने को मिला होगा। अभी आप बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब से मंगल नवंबर में वृषभ राशि में आया है तो यह आपके लिए अच्छा समय बना के दे रहा है 12 मार्च तक। जब तक यहाँ बैठा रहेगा तब तक मैंने पूरा फरवरी का महीना और 12 दिन मार्च के आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से आपके प्रथम भाव को देखता रहेगा और गुरु की भी दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ रही है। तो दोनों ही प्लैनेट्स आपके लग्न स्थान को मजबूत करे दे रहे हैं। अभी सूर्य तृतीय भाव में बैठे रहेंगे 12 फरवरी तक। तो जितने भी लोग टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड बिजनेसेस में हैं या काम में हैं तो उनके लिए भी ट्रैवलिंग
हो सकती है कार्य से जुड़े हुए चीजों के ऊपर 1 से 12 फरवरी तक में। शुक्र और शनि की युति बनेगी चतुर्थ भाव में, और ये युति बहुत अच्छी कहलाती है। जितना व्यक्ति को शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन पैसा बना के दे सकता है, उतना और कोई कॉम्बिनेशन नहीं दे सकता। और यहाँ पे बैठ के शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा 17 जनवरी से लेके अगले 2.5 सालों तक। तो यहाँ पे बैठ के आपके कार्यस्थल पे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाएगा। अब गुरु की 5वीं दृष्टि भी पड़ने लगेगी अप्रैल के बाद, क्योंकि गुरु अप्रैल में मेष राशि में चला जाएगा, यहाँ से 5वीं दृष्टि से दशम स्थान को देखेगा। तो जब भी गुरु और शनि एक साथ किसी भाव को देखते हैं तो उस भाव में एकदम से परिवर्तन होता है, बड़ा होता है वो भाव। तो उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो प्रोफेशनल लेवल पे तरक्की होगी, आपके जो पैसा आप कमाते हैं अपने प्रोफेशन से उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन ये शनि है तो आपको बहुत ज़्यादा स्लॉग करवाएगा जब तक ये यहाँ बैठा हुआ है। और आपके अगर मन में आता है कि कोई दूसरी नौकरी हम पकड़ लें, तो वो मत कीजिए, अपने जॉब में ही स्लॉग करिए और ये समय को आप इस्तेमाल कीजिए अपने को प्रूव करके दिखाने के लिए। और इसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो आप काम करेंगे उसका आपको आगे जाके भी काफी लाभ होगा। शनि को खुश करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि शनि दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी शोषित लोग होते हैं, गरीब वर्ग होता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बेचारे बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो शनि की कृपा आप पे बनी रहती है। शनि कर्म कारक ग्रह है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। भले ही अभी जल्दी ना मिले, क्योंकि शनि देर दिखाता है हर जगह पे, तो भले ही देर से मिले लेकिन परिणाम हमेशा शनि अच्छे देता है। अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं तो ये शनि प्रसन्न होता है, तो आपको अपने कार्यस्थल पे भी काफी हद तक कोई समस्या सुलझाने के लिए ये शनि मददगार साबित होगा। अब राहु और केतु बहुत अच्छी पोजीशन में है। 6वें भाव का राहु बीमारियों को नष्ट करता है और आपके शत्रुओं को पराजित करने का काम करता है। ये बहुत अच्छी पोजीशन कहलाती है, क्योंकि केतु भी 12वें भाव में बैठ के व्यक्ति को ऊपर लेके जाता है। जितने भी लोग समाधि स्पिरिचुअलिटी वगैरह से जुड़े हैं उनके लिए ये केतु बहुत अच्छा होता है। तो अभी हर महीने में मैं दिन होते हैं, मैं बोलता हूँ, जब आपको सावधान रहना पड़ता है। जब चंद्र आपके 6 8 12 से निकलता है तो आपको डिसीजन टेकिंग एबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जिन दिनों में आपको सावधान रहना है वो है 2 और 3 फरवरी, 12 और 13 फरवरी, और 25 और 26 फरवरी। इन दिनों में आप सावधान रहिए, कोई भी की डिसीजन लेना टालिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका, सारे सितारे आपके फेवर में हैं। शुक्र शनि की युति यहाँ पे बैठ के आपको पैसा ला के देने का कार्य कर रही है अपने प्रोफेशनल स्पेस से। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े हैं तो उससे भी पैसा कमाने के लिए ये युति बहुत अच्छी कहलाती है। गुरु आपको स्पेक्यूलेशन में सक्सीड करने के चांस दे रहा है, और मंगल यहाँ पे आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ एंजॉय करने का समय दे रहा है। और दोनों ही मंगल और गुरु अपनी अपनी दृष्टि से लग्न स्थान को देख के आपको भी मजबूत कर रहे हैं। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।